Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 6 जनवरी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय आवर होम मिनिस्टर अमित शाह, दैट इज़ अ तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल फॉर फार्मर्स। तूर दाल को प्रोक्योर करने के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसकी पेमेंट करने के लिए, उसकी लॉजिस्टिक्स के लिए एक अभी पोर्टल लॉन्च किया गया। करेक्ट पूछा जा रहा है कि क्या नाम रहेगा उस पोर्टल का, तो ई समृद्धि पोर्टल ये नाम रहेगा। इस ई समृद्धि पोर्टल को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? NAFED, जो कि है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड NCCF, जो कि है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन दोनों के द्वारा यहाँ पे ये इसको डेवलप किया गया। करेक्ट, तूर दाल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ तूर दाल, एंड ये फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया था ई समृद्धि पोर्टल। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ई समृद्धि पोर्टल से ये हेल्प करेगा टू स्ट्रीमलाइन द एंटायर प्रोसेस फॉर तूर दाल ग्रोअर्स इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका एंड झारखंड। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया का टारगेट है कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं, सेल्फ रिलायंट बन जाएं इन द पल्सेस सेक्टर। कब तक? बाय 2027। ये मार्क करके चलेंगे डेट। नेक्स्ट पर आते हैं, नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय MEITY फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए अभी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल बेसिकली क्या होगा? एक रेपोजिटरी होगा जहां पर आपका सारा डाटा होगा। उस डाटा को यूज़ करके अलग इंस्टीट्यूशंस ग्रो कर सकते हैं, इस रिसर्च को यूज़ कर सके अपनी रिसर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड जो ये पोर्टल होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड होगा, राइट, जो आज की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। तो अगर ध्यान दें तो पोर्टल का नाम क्या रहेगा? अर्नेट, ERNET। अर्नेट की फुल फॉर्म क्या रहेगी? एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, राइट, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, अर्नेट। ठीक है, अर्नेट का काम क्या रहेगा? बेसिकली अलग अलग इसको यहाँ पे डोमेन्स प्रोवाइड कराएगा अर्नेट, जैसे AC.in, edu.in, RES.in, ये डोमेन्स प्रोवाइड कराया जाएगा। एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन डोमेन को यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर इसी के अंदर हम देखेंगे ये जो पोर्टल है ये ऑफर करेगा डोमेन रजिस्ट्रेशन, डोमेन नेम सिस्टम। फिर इसी के साथ साथ ये वेबसाइट एज अ सर्विस प्रोवाइड कराएगा, एंड लर्निंग मैनेजमेंट एज अ सर्विस भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जो डाटा होगा यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं ताकि अपना लर्निंग को ग्रो कर सकें। ठीक है, अर्नेट ये पोर्टल का नाम रहेगा, MEITY के द्वारा लॉन्च किया गया था। MEITY के सेक्रेटरी S कृष्णन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अगर मैं बात करूं अर्नेट की, तो यहाँ पे चेयरपर्सन कौन रहेंगे?
अश्विनी वैष्णव। डायरेक्टर जनरल कौन है यहाँ पर? संजीव बंसल। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा इसका? न्यू दिल्ली में। इसी के अलावा अगर कुछ और क्वेश्चन देखें, जैसे अभी बताओ चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं मिजोरम के? लाल दुहोमा। ठीक है, फिर नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं छत्तीसगढ़ के? विष्णुदियो साय। नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं राजस्थान के? कौन बने हैं राजस्थान के? भजन लाल शर्मा जी। मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? मोहन यादव। ठीक है, ये कुछ नए आपको चीफ मिनिस्टर याद रखने हैं। फिर बताओ नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना पोलैंड का? वो है डोनाल्ड टस्क। ठीक है, डोनाल्ड टस्क। फिर अभी रिसेंटली त्रिपुरा ने किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि या फिर बोले टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर, टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? गांगुली, जिनको हम दादा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर पीएम नरेंद्र मोदी, इन्होंने अभी तमिलनाडु, केरला एंड लक्षद्वीप विजिट किया 2 एंड 3 जनवरी को। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप में सी डाइव करते हुए की भी पिक्स आई हैं काफ़ी सारी। इन्होंने वहाँ पे काफ़ी टूरिज्म को भी प्रमोट किया लक्षद्वीप में, राइट। एंड फॉर दैट रीज़न ओनली आप देखेंगे यहाँ पे जब इन्होंने यहाँ पे विजिट किया तो कई प्रोजेक्ट्स भी इनके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किए गए। जैसे अगर बात करें हम तमिलनाडु की, जो 2 जनवरी को उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने फाउंडेशन इनॉग्रेट किया एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो कि 20,000 करोड़ के रहेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड जो इनकी विजिट थी वो थी लक्षद्वीप, जहाँ पर इन्होंने 1150 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इनॉग्रेट किया। और तीसरा रहेगा ये इन्होंने केरला में विजिट किया, जहाँ पर इन्होंने एक रोड शो किया एंड वहीं पर हम देखेंगे ही ऑल्सो एड्रेस द भारतीय जनता पार्टीज वीमेंस कॉन्फ्रेंस, जो कि थिसूर केरला में थी, राइट। इसी के अलावा अगर कुछ और करंट अफेयर्स डिस्कस करूं, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ अभी रिसेंटली सीईओ ऑफ द ईयर कौन बने? सीईओ ऑफ द ईयर 2023 कौन है? सैम ऑल्टमैन। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 कौन बने? लायनल मेसी। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ इटली का हाईएस्ट ऑनर जो कि है ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक। आई रिपीट, ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक किस इंडियन एक्टर को दिया गया? कबीर बेदी को यहां पे सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से। ठीक है, फिर 33rd व्यास सम्मान, 33rd व्यास सम्मान से किनको सम्मानित किया गया? तो पुष्पा भारती ये हिंदी राइटर है एंड इनको 33rd व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, जैन इसी के अलावा एक और बताओ अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान किनको ऑनर किया गया? तो जावेद अख्तर को यहाँ पे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान ऑनर किया गया। नेक्स्ट है अभी जीआई टैग मिला है 3 वेराइटीज ऑफ हैंडलूम साड़ीज को वेस्ट बंगाल से एंड 7 प्रोडक्ट्स को फ्रॉम उड़ीसा से। डायरेक्टली याद रखेंगे इसको तो, ठीक है। देन चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? वो है बिपिन चंद्रा को। बिपिन चंद्रा को यहाँ पे चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट। किन्होंने इनॉग्रेट किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का एवियोनिक्स एक्सपो, तो अनिल चौहान के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। फिर प्रस्थान, यह भी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई थी प्रस्थान एक्सरसाइज? तो इंडियन नेवी के द्वारा प्रस्थान एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, ठीक। विनबैक्स ये एक्सरसाइज है कहां पर हुई? हनोई में हुई, राइट। मार्क करके चलेंगे, 4th एडिशन था विनबैक्स एक्सरसाइज का, हनोई में हुई। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 802 करोड़ रुपए का विद जुपिटर वैगन्स लिमिटेड एंड बीईएमएल फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट। 2 कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे यहाँ पे, याद रखेंगे। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो है 473 करोड़ रुपीस का, ये जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ था एंड इट वाज फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 697 बोगी ओपन मिलिट्री वैगन्स। ये तो था पहला कॉन्ट्रैक्ट। जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये कॉन्ट्रैक्ट था आपका
329.87 करोड़ रुपीस के लिए BEML लिमिटेड के साथ था एंड 56 मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करने के लिए। करेक्ट। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था 473 करोड़ का जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के लिए 697 बॉगी ओपन मिलिट्री वैगन्स को यहाँ पे प्रोक्योर करना, और दूसरा 329.87 करोड़ रुपीस के लिए 56 मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करना। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा डायरेक्शन दी गई हैं कि जो भी ऑम्बर्समैन है, जो भी आपकी ग्रीवियंस आती है, जो भी कंप्लेंट आती है किसी भी कस्टमर को, उसको 30 दिन के अंदर यहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ेगा बाय बैंक, राइट। चाहे वो इंटरनल ऑम्बर्समैन के थ्रू जाए या फिर रेगुलेटेड एंटिटीज के थ्रू जाए, उनको विद इन 30 डेज कस्टमर की जो भी कंप्लेंट है उसको उसका फाइनल डिसीजन देना पड़ेगा। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो इंटरनल ऑम्बर्समैन है ना, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। 70 साल से ज़्यादा के वो नहीं होने चाहिए, एंड अगर वो फिक्स टेन्योर पे अपॉइंट किया जा रहा है तो मिनिमम 3 साल एंड फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा इंटरनल ऑम्बर्समैन को। एंड इसके बाद उनको सेम रेगुलेटेड एंटिटी में वापस से अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, उसमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, राइट। तो मार्क करके चलेंगे। आरबीआई ने इशू किया डायरेक्शंस कि जो भी इंटरनल एम्बर्समेंट्स हैं और रिलेटेड रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, उनको अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को विद इन 30 डेज यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आरईसी। इन्होंने एक एमओयू साइन किया किस बैंक के साथ? टू फाइनेंस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे याद रखेंगे आरईसी, इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ यहाँ पर एक एमओयू साइन किया था, और ये एमओयू किस लिए था? ताकि वेरियस प्रोजेक्ट्स जैसे आपके पावर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स, इनको ग्रो करने में जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, वो कौन प्रोवाइड कराएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू वो यहाँ पे पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा। 3 साल के लिए ये आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, मतलब 2023 से 2026 तक ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, आरईसी लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी या कौन सी कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी टू गेट एलिजिबल फॉर पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम से है क्या? ये प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। इस स्कीम से क्या होगा, पहले तो नाम ही बता देता हूँ। ओला कंपनी रहेगी जो कि इंडिया की पहली 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीलर कंपनी बनी, जिसको पीएलआई स्कीम के लिए एलिजिबल किया गया बाय रिसीविंग अप्रूवल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इस स्कीम से क्या होगा, इनको काफी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। पर यूनिट पर स्कूटर इनको 15,000 से लेके 18,000 रुपए तक का बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट। अब इससे क्या होगा, स्पेसिफिक वाइज से क्या होगा, हम जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है ना, वो अभी थोड़ी लो है। रीजन बीइंग, एक तो कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आप प्रोक्योर कर रहे हैं, उसमें से अगर मान लो इनको ये बेनिफिट मिल रहा है और इस बेनिफिट से ये अपनी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो जो मार्केट है उसकी और पेनिट्रेशन हमें देखने को मिलेगा मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे ओला, ये वो पहली इंडियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी बन गई जिसको एलिजिबल किया गया फॉर पीएलआई स्कीम, राइट। और यहाँ पे 15,000 से 18,000 रुपए पर यूनिट इनको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक, ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ को फाउंडर कौन रहेंगे यहाँ पे? एंड सीईओ भावेश अग्रवाल एंड अंकित भाटी। अंकित भाटी यहाँ के को फाउंडर रहेंगे। सीईओ हैं भावेश अग्रवाल। हेडक्वार्टर का है बेंगलोर कर्नाटका में। 2017 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा अनाउंस किए गए विनर्स ऑफ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है ना, बेसिकली 4 कैटेगरीज में दिया जाता है। एक तो है जो आपके नए यंग टैलेंट आ रहे हैं, दूसरा एनकरेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स के अंडर भी यहाँ पे दिया जाता है अवार्ड, राइट। ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड याद रखेंगे, इट इज वन ऑफ द 6 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो प्रेजेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। ये जो अवार्ड है ये बेसिकली कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के एफर्ट्स जैसे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एनजीओज, स्टेट एंड नेशनल लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज, इनके द्वारा दिया जाता है बेसिकली, और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये जो स्पोर्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए। इसमें कोई आपको कैश प्राइज नहीं मिलता है, एक ट्रॉफी मिलेगी और एक साइटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चैड्स प्राइम मिनिस्टर। चैड के प्राइम मिनिस्टर नए कौन बने हैं? वो हैं सकैस मासर। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑफ चैड। मार्क करके चलेंगे इनको। फिर इसी के अलावा अगर कुछ और देखें, जेमिनी,
ये एक AI मॉडल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा, एंड इट इज़ वन ऑफ देयर लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल AI मॉडल। देन Zoox 2, ये एक फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है Zoox 2। ठीक। देन पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट मून पे जाएगा, कब तक? 2040 तक, ऐसा इसरो ने बोला है, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे एडमिरल्स कप। एडमिरल्स कप ये इंडियन नेवल एकेडमी में हुआ था, किस कंट्री के द्वारा जीता गया एडमिरल्स कप? तो इटली के द्वारा जीता गया है एडमिरल्स कप। नेक्स्ट है कुवैत अमीर अपॉइंटेड शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको अपॉइंट किया गया। देन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को। देन ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 दिसंबर को। इसके बाद इंटरनेशनल माउंटेन्स डे 11 दिसंबर को। यूनिसेफ डे ये भी 11 दिसंबर को, राइट। देन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 14 दिसंबर को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। तो किन को अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली? ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वो रहेंगे शशि कुमार सिंह। आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये सक्सीड करेंगे रमेश केजरीवाल को टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन 2023-24 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इसरो के आर्म NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा अभी GSAT N2 या फिर बोले GSAT 20, राइट, ये सैटेलाइट अभी लॉन्च की गई। ये सैटेलाइट बेसिकली किस लिए सैटेलाइट लॉन्च की गई है? ताकि इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके। 48 Gbps यहाँ पे आपकी स्पीड रहेगी इस इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू आपके मैरीटाइम ऑपरेशंस में, राइट, रिमोट लोकेशंस में। देन आपके फ्लाइट्स के दौरान इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए ये GSAT N2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, राइट। मार्क करके चलेंगे 48 Gbps यहाँ पर आपकी स्पीड रह सकती है इसकी। 4700 किलोग्राम का वेट रहेगा इस GSAT N2 सैटेलाइट का, एंड इसको SpaceX के Falcon 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? राधा कृष्णन द्वाइराज। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में, एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया 2019 में। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटी स्ट्रेस वियरेबल? तो सबसे पहले याद रखेंगे ग्लोबल स्पेस। ग्लोबल स्पेस एक कंपनी है, नवी मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ये आपकी कंपनी रहेगी। इनके द्वारा अभी पहली एंटी स्ट्रेस एक वेरिएबल लॉन्च किया है गोरोगा, इसका नाम रहेगा गोरोगा। ये NIBS टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। NIBS क्या है? नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी। ये आपकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है एंड मेंटल वेलनेस को इंप्रूव करता है, राइट। मार्क करके चलेंगे NIBS टेक्नोलॉजी पे बेस्ड गोरोगा, ये आपका एक फर्स्ट एंटी स्ट्रेस वेरिएबल डिवाइस रहेगा जो कि ग्लोबल स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया। ये नवी मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड एक कंपनी रहेगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है पॉलीगोनम चतुर्भुजनम। ये एक नई स्पीशीज है हर्बाशियस प्लांट का स्पीशीज, जो कि अभी महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में डिस्कवर की गई। आई रिपीट, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में एक नई हर्बाशियस प्लांट स्पीशीज को डिस्कवर किया गया जिसका नाम रहेगा पॉलीगोनम चतुर्भुजनम। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर। तो अभी एक नई बुक आई है संस्कृति के आयाम। संस्कृति के आयाम, इस बुक को जनरल VK सिंह के द्वारा रिलीज किया गया। ऑथर किया गया है मनोरमा मिश्रा के द्वारा, राइट, रिटन बाय मनोरमा मिश्रा। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के दौरान, एंड ये जो बुक है ये बताती है अबाउट इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन एंड कल्चर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट न्यूज़ की, हिमाचल प्रदेश की। इनके द्वारा अभी 2 पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं बेसिकली जो गवर्नेंस है उसको बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए। पहला रहेगा रिपोर्ट मैनेजमेंट
पोर्टल। रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल का काम क्या रहेगा कि जो सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ रिपोर्ट्स का काम होता है ना, उसकी मॉनिटरिंग को उसको और बेटर बनाना, ताकि उसको इजी किया जा सके, ताकि जो रिपोर्ट्स हम भेजेंगे अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस, उसको मोर एफिशिएंट बना जा सके एंड रियल टाइम डिसीजन मेकिंग और बेटर हो सके। दूसरी चीज याद रखेंगे, मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल ये भी लॉन्च किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके बिटवीन द मीटिंग्स। करेक्ट। तो ये दो पोर्टल अभी लॉन्च किए गए हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। अगर गवर्नर की बात करें, कौन रहेंगे गवर्नर हिमाचल प्रदेश के? शिव प्रताप शुक्ला। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर। यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ई समृद्धि पोर्टल को लॉन्च किया, जो कि एक तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है फार्मर्स के लिए। MEITY सेक्रेटरी एस कृष्णन, इन्होंने लॉन्च किया अर्नेट, जो कि इंडिया का वेब पोर्टल है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन PM मोदी के विजिट टू तमिलनाडु, लक्षद्वीप एंड केरला 2nd, 3rd एंड 4th जनवरी को थी, एंड इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट को यहाँ इनॉग्रेट किया। देन 3 वेराइटीज ऑफ हैंडलूम साड़ीज इन वेस्ट बंगाल एंड 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओडिशा, इनको GI टैग मिला। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 802 करोड़ रुपीज विद जुपिटर वैगन्स लिमिटेड एंड BEML फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट्स। कस्टमर कंप्लेंट शुड बी कम्युनिकेटेड विद इन 30 डेज, ऐसा RBI ने बोला, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी कस्टमर्स की, उनको 30 दिन के अंदर उसका फाइनल डिसीजन देना पड़ेगा बाय दिस IOs फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। देन REC एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स को यहाँ फाइनेंस किया जा सके। ओला इलेक्ट्रिक वो पहली इंडियन इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर कंपनी बन गई जो कि एलिजिबल रहेगी फॉर PLI स्कीम। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने अनाउंस किया विनर्स ऑफ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। देन सकैस मसरा, इनको अपॉइंट किया गया एज द चैड्स प्राइम मिनिस्टर। कुवैत अमेर अपॉइंटेड शेख मोहम्मद सबा एल सलेम एल सबा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। शशि कुमार सिंह को इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इसरो की NSIL ये लॉन्च करेंगे GSAT N2 सैटेलाइट को, जिसको GSAT 20 भी बोला गया, एंड ये Falcon 9 रॉकेट की मदद से ले जाया जाएगा स्पेस में, एंड ये इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करेगा। देन ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया गोरोगा, ये इंडिया का पहला एंटी स्ट्रेस वेरेबल डिवाइस रहेगा। देन पॉलीगोनम चतुर्भुजनम, ये नई हर्बिशियस प्लांट की स्पीशीज है जो कि पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में डिस्कवर की गई। एंड जनरल VK सिंह ने रिलीज की एक बुक संस्कृति के आयाम, ये रिटर्न है बाय मनोरमा मिश्रा। देन हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुक्खू, इन्होंने लॉन्च किए 2 पोर्टल फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस, एक है मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल और दूसरा है रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ हैं। अगर आप चाहते हैं हम फ्यूचर में ऐसा सेशन लाते रहें तो कमेंट आपको ज़रूर करके बताना है कि आपको कैसा लगा सेशन। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस देखें तो ज़रा बताओ, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये कहाँ सेटअप की जा रही है? तेलंगाना में सेटअप की जा रही है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। 67th नेशनल स्कूल गेम्स, 67th नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी रिसेंटली अटल हेल्थ फेयर हुआ, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। हुआ कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक, फिर उस पहली एयरलाइन का नाम बताओ, इंडिया की पहली एयरलाइन जिन्होंने 100 मिलियन पैसेंजर्स किए एक साल में। तो क्या नाम रहेगा एयरलाइन का? वो है इंडिगो। ठीक, फिर इसी के साथ साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक जनरेटिव AI का स्टूडियो लॉन्च किया है बेंगलोर में? किसके द्वारा किया गया है? असेंचर के द्वारा। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ, पहला फर्स्ट इंटरनेशनल संघा फोरम कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट इंटरनेशनल संघा फोरम ये हुआ बोधगया में, और किसके द्वारा कराया गया था, इनॉग्रेट किया गया? दलाई लामा जी के। कुछ और करंट अफेयर्स देखें तो जैसे सांस, ये कैंपेन था मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया था, एंड बेसिकली ये जो कैंपेन था ना, न्यूमोनिया को के खिलाफ ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर आता है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई फार्मर्स के लिए। एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा? पाट मित्रों। ठीक है,
नेक्स्ट, रिपब्लिक डे पर किसको अपॉइंट किया गया है? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। ठीक, फिर इसके अलावा अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं थर्ड टाइम के लिए? अब्दे फतेह एल सीसी, राइट। फिर ईडी ऑफ आईसीआईसीआई बैंक कौन अपॉइंट किए गए हैं? संदीप बत्रा। कुछ और देखें तो वो इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट कौन है जिनको क्राउन किया गया मिस इंडिया यूएसए 2023? वो है रिजुल मैनी। ठीक है, फिर वो कौन सी फिल्म है जिसको KIFF फेस्टिवल के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। नेक्स्ट, किसको अभी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल डॉक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नितिन मोहन लाल को, राइट। देन किसको अभी फिक्की वाटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया फॉर वाटर यूज एफिशिएंसी? वो रहेगा NTPC कांति। ठीक, फिर लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मिशन को। ठीक, फिर इसके अलावा जरा बताओ विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? हरियाणा के द्वारा पहली बार जीती गई है। देन MRF फॉर्मूला 2000 क्राउन किन्होंने जीता? वो है संदीप कुमार ने। मोस्ट एक्सपेंसिव IPL प्लेयर कौन रहा है इस ऑक्शन के दौरान? IPL ऑक्शन के दौरान मिशेल स्टार्क। ठीक है, और सब जूनियर स्नूकर टाइटल किन्होंने जीत लिया? नताशा चेतन ने। जीका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। और ये जो साइन किया गया ना, बेसिकली क्या है? डेवलपमेंट के लिए इंडिया में हम दो चीज़ों पे यहाँ पे हेल्प करेंगे। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ग्रो करने के लिए, एंड दूसरा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। कितना अमाउंट है? 4,15,301 मिलियन येन। इसमें से 400,000 मिलियन येन जो होगा वो आपका यूज़ किया जाएगा मुंबई अहमदाबाद के 500 किलोमीटर लॉन्ग रेल इकोसिस्टम को, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एंड बाकी 15,301 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने ग्रांट किया वन टाइम एग्जाम्पशन ऑफ LIC टू अचीव डैश मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग विद इन 10 ईयर्स। तो 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव करने का यहाँ पे वन टाइम एग्जाम्पशन मिला LIC को। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इट्स 2-year टर्म। फॉलोइंग दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने नॉमिनेट किया कितने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को टू रिप्रेजेंट वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम? तो 31 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, जिसमें आपके फाउंडर भी रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे इन्वेस्टर्स की तरफ से, आपके इंक्यूबेटर्स की तरफ से एंड एक्सेलरेटर्स की तरफ से। इसमें आप देखेंगे कुणाल बैल जो को फाउंडर है स्नैपडील के वो हैं, वाइस चेयरमैन ऑफ इन्फोएज नितिन कामत, फाउंडर ऑफ CEO ज़ेरोधा, ये भी रहेंगे। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। बिस्लरी क्या है? ये वाटर ब्रांड है ग्लोबल, राइट। तो दीपिका पादुकोण को अभी यहाँ पर इनका बिस्लरी का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन S रामानुजन। तो S रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? 22 दिसंबर को। और इस साल 2023 में हमने उनकी 136वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी, राइट। तो 22 दिसंबर को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे इन द बर्थ एंड इन द मेमोरी ऑफ S रामानुजन। करेक्ट। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था नेशनल मैथमेटिक्स डे? 2012 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द इंपोर्ट ड्यूटी एग्जाम्पशन ऑन मसूर दाल जो लेंटिस है, कब तक इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है? तो याद रखेंगे 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक जो मसूर दाल होती है उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसका एग्जाम्पशन लगा दिया गया है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू एम्पावर रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप आर्टिशंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर्टिशंस को एम्पावर करने के लिए अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किसके साथ टाई अप किया? जियो मार्ट के साथ। यहाँ पर इन आर्टिशंस को स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, कैसे अपने प्रोडक्ट को ग्रो कर सकें, कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकें एंड कैसे उसको डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट ऑडियंस को बेच सकें। नेक्स्ट, किस बैंक ने और ऑर्गेनाइजेशन ने भी अप्रूव किया लोन ऑफ $300 मिलियन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम को ग्रो कर सकें। तो याद रखेंगे यहाँ पर ये जो अमाउंट है $300 मिलियन का, किसके द्वारा दिया गया है ये लोन? ये दिया गया है आपका, बताइए किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, राइट। $300 मिलियन का लोन है, ठीक, वर्ल्ड बैंक ने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया, ताकि तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम को यहाँ पे ग्रो करा जा सके। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, ये मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, इन्होंने अभी एक नया ऑफिशियल लोगो, जर्सी एंड थीम सॉन्ग लॉन्च किया है छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में होंगे। पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो क्या रहेगा मैस्कॉट? वो है वीरा मंगाई, वीरा मंगाई रहेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, इन दिसंबर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डैश हु वन द 1987 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स पास्ट अवे। तो कौन है वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनको 1987 में नोबेल प्राइज मिला था, जिनका भी रिसेंट निधन हो गया? तो वह रॉबर्ट मैटॉन सोलो, करेक्ट, इनका निधन हो गया है। 1987 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, जो कि 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 1979 से लेके 1980 तक ये यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे थे, प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के, एंड ये 5वें प्राइम मिनिस्टर बने थे। पूछा जा रहा है नेशनल फार्मर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है या फिर किसान दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर साल 23 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड 2023 में हमने इनकी 121वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी थी। पहली बार किसान दिवस कब ऑब्जर्व किया गया था? किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर 2001 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। Next, which of the following banks in India along with the government has recently been working for the fund framework for green hydrogen projects? तो कौन से बैंक वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि ये फंड फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए? HDFC बैंक, SBI एंड ICICI बैंक, ये तीनों बैंक यहाँ पे वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि एक फंड फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, रिसेंटली what new requirement has the Election Commission of India introduced for the registered unrecognized political parties seeking election symbols? दूसरा, which motivational speaker and NGO founder was appointed as the brand ambassador for the government's Viksit Bharat Abhiyan initiative? तीसरा, which company recently secured a contract to survey India's first PRT metro corridor using drones? And चौथा, what is the full form of FMR as mentioned in the news regarding India's border with Myanmar? And पांचवा है, on the banks of which river West Bengal government plans to develop a टी पार्क? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.